I'm starting. Good afternoon, Namaste. It is my pleasure to welcome you all to this panel discussion organized by Linen Club and Soktas. आज हमारे साथ आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि हम सभी समझ सकते हैं, कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ाई हमारे लिए एक नई परीक्षा की घड़ी है, जिसमें लॉकडाउन के बाद हमें वर्किंग कैसे करनी है, किस तरह से हम अपने बिजनेस में बने रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चंस आज हम सभी के मन में हैं। Now that we begin to unlock and open up our businesses and our stores, we will all need to look at new ways of doing business, which is the theme for our panel discussion today, winning in the post-lockdown era. I am Shruti Agrawal and I head marketing for Linen Club and Soktas. I will be your moderator for the day. आज हमारे साथ डिस्कशन के लिए हमारे 5 पैनलिस्ट हैं जो हमारे साथ अपने विचार शेयर करेंगे। उसके बाद अगर आप में से कोई भी प्रश्न पूछना चाहे तो आप अपनी स्क्रीन पे एक चैट बॉक्स देख सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस वहां पर लिख सकते हैं। हम उन क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करेंगे। So without further ado, I will start the panel discussion. Our first panelist is Mr. Satyaki Ghosh. I think आप में से कुछ लोग उन्हें जानते होंगे। Mr. Ghosh is the CEO of our domestic textiles business and heads our overall linen, wool and cotton segment. So sir, for you, the question we would like to ask is, how do you see COVID-19 impacting our cotton and linen fabric business? What do you think the recovery will look like? And what are the plans that we as a company have to win? Hello and welcome. Good afternoon, partners. Good afternoon, all our dealers, agents, and MBOs, as the case may be. Also, some of our team members. Thank you for joining us in this panel discussion. And thank you, Shruti, for the introduction and for asking the leading question, which is not an easy question to answer. But let's say that COVID-19 is once in a lifetime situation and all of us are affected by it. It is something that the world has never seen and hopefully should never see again, a situation like this. And really there are no experts who can tell you what exactly will happen. But because we see a lot of research, because we talk to a lot of people, because we are doing plans or etc. We have some idea and we are doing some prediction to happen. More or less the consensus is that overall 2020 sales from April to March could overall see a 25 to 40% decline versus last year or versus your expectation. I think in our kind of business, fabric, apparel kind of business, spring summer 20 would expect a much sharper decline, and autumn winter 20 will also see some decline, but could be coming back towards normal. We are thinking that the recovery will be slow and consumers who have pulled back will come back to the fashion industry as they start spending discretionary income and they will trade a bit more for value for money product, which is not super great for our premium cotton, wool, linen, these kind of products which are premium in one sense. In the other sense, these are all niche fabrics, linen, merino wool, premium cotton, the way Soktas and Giza House sells. These are premium products and premium products do not get affected that much during a downturn. I'll try to explain how. I think online sales have started non-essentials. As fabric has still not picked up even online. People after their food, etc. need for the first 2 months of lockdown have gone back and started buying electrical products. People who have lost a
toaster, people whose microwave has gone for a toss. You know, they have gone back to hardware stores and electrical instruments to buy. I think textile and garment will take a bit more time. It's coming back. I'll give you some examples, but it will take a bit more time. But when it comes back, I think it will come back quite well. Here, I wanted to introduce you to a couple of slides to say that, let me put the slide and let me talk about it. Let me see, where is the slide? Hopefully you can see the slide. This says that, there are 4 types of consumer, which is on the vertical axis. They are slam on the brakes. How do you define them? Slam on the brakes. Second group is pained but patient. Third group is comfortably well off. And fourth group is live for today. There are 4 types of products generally in the market: essential, things that are taken as treat, things that are postponable, and things that are expendable. So as you go down actually from slam on brakes to live for today, you will see that people become more and more freer to buy many more things. Slam on brakes are, the middle class, lower middle class people who will largely will seek lower cost products, etc. on the top left hand corner, and then they will think of treats but will try to eliminate. And postponables and expendables, I think they will eliminate from the category. Going down, if you look at the live for today, the last line, these are largely the millennials, and they will continue to buy their favorite brands. They will be buying expendables also. They may not buy a lot of postponables, but they will be there in the market to look at it. And they will continue to buy favorite brands at pre-recession levels in the treats. Live for today are largely the millennials, the younger crowd, not only the millennials. I think Generation Z, etc. They will all buy, the younger people. They will continue to buy. In between these two, you see 2 sets of consumers. Pained but patient. This is middle class and comfortably well off, which is quite clear from the definition. And you'll see that the comfortably well off, even in postponables, will seek better quality for price, but will negotiate harder for the price point, but they will buy. And essentials and treats, they are out there in the market. So the pink boxes are the boxes which are most impacted. The darker yellow considerably impacted, and as the yellow starts lightening, it's less impacted, and the green is the least impacted, and the dark green is the absolutely least impacted. So if you are a company and if you're a business like our business, which is Linen Club and Soktas Giza House and wool, these kind of businesses, merino wool, then you will see that you will play largely in this comfortably well off and live for today. These kind of people, they come and buy your Linen Club or Soktas because in any case they are expensive in the marketplace. And the product that you are selling, which is fabric and apparel, you are in the postponable, expendable area. So you're not essential, you're not Parle-G biscuit, or you are not, let's say, dal chawal atta, and but you can be treat. Once they get out, is it more possible that they'll go out and immediately buy a car, or is it possible that they'll go out and buy a shirt? I think the smaller treats will come first in life when you come out of lockdown. And there's also something called pent-up demand. So if I take this presentation out for a second, then we will see that
If we go back to our original question and see that out of these 4 types of consumer, we are servicing comfortably well off and live for today largely, and we are somewhere between postponable and expendables. But if we can place ourselves as a small treat, as the first shirt, as the first jacket, as the first buy that is outside your essentials, then we have a very good chance. And we are seeing some of these effects. Okay, just to tell you that our EBOs have started. We as of yesterday had 177 out of our 200 EBOs open. We started from early May to open them from 2nd May, and in May exit was with 136, and today we are about 177. We are seeing even in large cities, EBOs have opened up. For example, our Linking Road, Mumbai, Indiranagar, Bangalore, Kamak Street, Calcutta, Khan Market, Delhi, etc. are open, and a lot of our franchisee brethren's shops are open. But we are seeing the best output in the tier 2, tier 3 town stores. And I think the recovery will start from rural, will start from tier 2, tier 3. So my instruction to the sales team and my dealer partners, etc., are to explore as many outlets as possible in tier 2, tier 3 towns, go rural if possible. There are 2-3 reasons. One, COVID has spread less in the non-big cities. In the smaller towns, COVID is less. 2, when people are coming out, when you have a store in a small town, you know, like Latur, not many brands have stores in Latur, at least not as many brands as in Delhi and Kolkata and Bombay and Ahmedabad and Pune and so on and so forth. So if you are open, then you are one of the options. The second is the small town consumer used to come to the big towns to buy for their major buys. So they would come to a Bombay, they would come to a Bangalore to buy from around. Now, because traveling is so much more difficult and traveling people are so cautious about traveling, they will buy from their local towns what is available. So chances of recovery will come out of the smaller towns, and the smaller towns will see higher throughput, is my belief, than before. We have some examples. For example, our Latur store, our Beed store, our Jalgaon store, couple of our stores in South, in the smaller towns, Hassan, etc., have done exceedingly well in March. In fact, I can give you example of Latur. Why I remember Latur is Latur did 116% of pre-COVID 12-month average sale in May on the days that it was open. So if it was open for 20 days, those 20 days sale versus last year is 116% of 12-month average before COVID blocked the lockdown. So that's a fantastic thing. So recovery may not be so slow. And I can tell you of the 136 stores opened in May, our average sale on a days opened basis was 48%. Now 48% is really good. It's 50% and you're only in May. So when you go into July, when you go into August, maybe we will be doing much better than what we are doing now. It's true that the recovery will be with hygiene, it will be digital enabling, and A.T. Kearney partners who are with us today, they will talk about some of these. But it is important to understand that we think in Linen Club and Soktas that the recovery will be faster than what we are thinking now. Of course, the learnings for the business are that cost reduction efforts will have to be taken. I think all of my business partners, you have taken cost reduction efforts, and we have also taken and we will continue to take. But we will have to keep our ingenuity, we have to keep innovative products, and we have to keep our investments on innovation and marketing. We also have to embrace emerging technologies quite well if we plan to recover fast. And our IT head Saugata will share more about this. We'll have to now prepare to serve tomorrow's consumer. Tomorrow's consumer is called 6 feet consumer, which means social distancing. Everybody is trying to keep 6 feet distance with the next guy. So it's called the 6 feet economy. And this consumer will not be like yesterday's. This consumer will be more demanding. This consumer will want more transparency.
And the more transparency we have in our supply chain, from our vendors to our factory to our dealers to our retailers, better it will be. Because you don't know when the consumer will come, he or she is more demanding, he or she will want something. The retailer brother should know clearly where is it available. Does the dealer have it? Does the company have it? Does the warehouse have it? Is it in warping? Can they do it? How fast can they do it? So I am urging all my business partners to take this opportunity and become transparent and transform this supply chain that we have in fabric apparel business to a much more transparent consumer goods kind of supply chain where we all assist each other, because if we don't have each other's back, it will be very difficult for us to recover. I think product portfolio and innovation is a big thing. We have launched wellness finishes. We have antiviral and antibacterial finishes. Already a lot of our BNR customers, you know, Blackberry, Zodiac, Madura have come back and send us their fabric that they're already holding to reprocess it into antiviral, antibacterial, and to send it back. We are also in the experiment stage for herbal based finishes like neem finish, tulsi finish, these kind of finishes. We have innovated in our apparel business and launched masks. Some of our EBO friends are already giving masks. If you order a kurta or a shirt, they are making a mask of the same fabric. It takes 20 centimeter extra cloth, but the customer is really happy. And when you give his bespoke shirt, you tell him that we are giving you a mask, matching mask free. It is not a safety mask. There's no PPE. It's just a good looking matching mask. And because we care about your safety. I think alternate selling channels will be important. I think digital will be important. We already getting some orders from our EBO partners on WhatsApp. I can give you example of a Camac Street customer where our store people send him WhatsApp images. The customer was not in Calcutta, was in a city called Asansol, which is 200 kilometers away maybe. And he selected something. He sent a relative who paid money. Do you know what was the bill value? 1,25,000 worth of goods he bought on WhatsApp, one consumer. So you can imagine that this is only going to gain momentum. And I can show you another slide to make that point, and then I will close. But I think this is important to have a look. So if you I was showing that we have made Linen Club masks, 3-layer protection, and some of our EBO friends have made this. They have serviced a kurta and there's a mask, there's a shirt and there's a mask. We've also innovated by co-branding with MBOs where Aditya Birla, Linen Club, or and our customers, like for example RS Brothers, you can see here, it's a joint artwork which has gone out from RS Brothers side to all their consumers, and similarly there are about 150 or 180 MBO partners who we have helped to get them the artwork, how to come back, how to be telling consumers that it is safe to come to their stores, and we will have to continue these efforts. But coming back to my point of digital transition, I think when we are asking consumers, these are the kind of things that they're seeing. Almost 50% people are saying they prefer to buy online. So my challenge here is to say that how can my dealer friends go online and sell fabric? How can you do it digitally? And they are saying that 86% people saying home delivery is better from the store, even if there is a little bit of charge for home delivery. So these are things that one should think about, and there is no right or wrong in this, but we should know that digital is something that is here to stay, and digital is something that we will have to embrace. So with that, I think I would have answered the question that Shruti asked me. Digital marketing is going to be a big piece. Transparency is going to be a big piece. We need to hold each other's hands. And I think the recovery will be faster than you think. If you can make your product a little treat, you know, we are already servicing the well-off and the live for today consumers. So we are in the right segment, and we will come back, and we'll come back quite strongly. Thank you, Shruti. Thank you, sir. Those were really good insights.
हमारे आज के दूसरे पैनलिस्ट हैं मिस्टर सिद्धार्थ जैन। सिद्धार्थ इज अ पार्टनर विद कानी। कानी एक ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म है एंड इज वर्ल्ड रिनाउंड। Siddharth comes with a lot of experience in retail and apparel, and I'm sure his views will be of tremendous help to us today. So, Siddharth, to you, the question that we want to ask is, आपके हिसाब से, what are some trends that you are seeing in the industry today, and हमारे channel partners क्या कर सकते हैं to win in the new normal? Sure, Shruti. Thank you, Shukriya. So देखिए, this is as tough an environment that as we can be. As a consultant, एक analyst हूँ मैं. It is my job to really project and predict कि what will happen अगले 3, 6, 12 महीने में क्या होगा. सबसे पहले I have to admit that कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है. इट इज़ हर दिन एक नई न्यूज़ आ रही है, कुछ नए रूल्स आ रहे हैं. सो वी कैन पुट आवर बेस्ट व्यू, बट वी हैव टू बी एजाइल. हमें रेगुलरली इवैल्यूएट करना होगा, ट्रैक करना होगा. कुछ चीज़ें जो सत्यकी सर ने बोली कि स्टोर्स कैसे कर रहे हैं, जो खुल रहे हैं, कहाँ बेहतर कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू वॉच, शेयर विथ ईच अदर एंड बी एजाइल. ओवरऑल देखें तो हमारा व्यू है कि रिकवरी होगा, लेकिन स्लो होगा. अगर ये सवाल मुझसे 3-4 हफ्ते पहले पूछा जाता तो हमारा व्यू था दैट ये क्वार्टर और अगला क्वार्टर बहुत टफ होगा, बट क्वार्टर 3 काफ़ी अच्छा होगा, क्वार्टर 4 काफ़ी अच्छा होगा. अभी थोड़ा सा चेंज हो गया. आई थिंक द ओपनिंग हैज़ हैपेंड फास्टर देन आवर एक्सपेक्टेशन. सो गवर्नमेंट हैज़ मोर रैपिडली ओपन. इवन शहरों में, बड़े शहरों में भी काफ़ी स्टोर्स खुल गए हैं हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ी जल्दी. सो दैट इज़ अ पॉजिटिव. इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में शायद अब थोड़ा बेहतर होगा परफॉर्मेंस. बट एट द सेम टाइम अगर आप कोविड का कर्व देखें तो वी आर नॉट कमिंग आउट ऑफ इट रियली. वो हर दिन के नंबर्स आर लुकिंग वर्स. सो हमें लगता है कि पेन थोड़ा लंबा होगा एंड Q3, Q4 विल बी प्रोबेबली वर्स देन व्हाट आई वुड हैव थॉट आज से 3-4 हफ्ते पहले. ओवरऑल आई थिंक इफ आई हैव टू पुट अ नंबर, मुझे लगता है Q3 तक हम 80-85% लेवल पे आ जाएंगे जो पहले था, और Q4 शायद सेम लेवल पे आ जाएगा जो प्री कोविड था. तो उस बेसिस पे हम अभी प्लान कर सकते हैं. बट एज आई सेड, वी हैव टू बी वेरी केयरफुली वॉचिंग विद इन आवर प्रोडक्ट्स ऑल्सो. अगर हम सोक्तास और लिनन क्लब देखें, दोनों प्रीमियम प्रोडक्ट हैं, दोनों हायर एंड पे केटर करते हैं, तो विच इज़ बेटर. तो थोड़ा इम्पैक्ट कम होना चाहिए. Between the two, there are pluses and minuses to watch out. लिनन को देखें तो वो एक नीश फाइबर है, प्रीमियम, और कुछ कस्टमर्स ही लेते हैं, और जो लेते हैं वो लॉयल कस्टमर्स हैं. सो आई थिंक दैट इज़ वन एडवांटेज. लिनन हैज़ लॉट ऑफ लॉयल कस्टमर जो लिनन प्रेफर करते हैं. उनके पास देखा जाए तो बहुत सारे ब्रांड के ऑप्शंस नहीं हैं. उनके पास देखा जाए तो रेडी टू वेयर में भी कम ऑप्शंस है कंपेयर टू फैब्रिक. तो मुझे लगता है, एटलीस्ट मेरा मानना है कि उसमें थोड़ा कम इम्पैक्ट होगा, बिकॉज जो रेगुलर लिनन बायर्स हैं वो प्रेफर करेंगे अभी भी खरीदना, एंड वो आएंगे आपके पास खरीदने. प्रीमियम कॉटन में अल्टरनेटिव्स काफ़ी हैं, रेडी टू वेयर ब्रांड्स भी बहुत अवेलेबल हैं, तो थोड़ा सा मामूली हो सकता है इम्पैक्ट ज़्यादा हो. बट एट द सेम टाइम लिनन महंगा भी है, फैब्रिक और ज़्यादा महंगा है, तो वो भी थोड़ा कैन बी अ पोटेंशियल चैलेंज. सो इसलिए आई थिंक केयरफुली ये सब देखना होगा. बट आई थिंक मेन क्वेश्चन जो था ट्रेंड्स, सो हम लोग बहुत रिसर्च कर रहे हैं. व्हाट इज़ द कंज्यूमर थिंकिंग, व्हाट आर ऑल ऑफ यू चैनल पार्टनर्स थिंकिंग, बिजनेस के क्या ट्रेंड्स होंगे. सो हमारा मानना है कि चार ट्रेंड्स हैं विच यू हैव टू रियली वॉच आउट फॉर. एंड फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ कंज्यूमर ट्रेंड्स. एंड कंज्यूमर ट्रेंड जो हमारा रिसर्च दिखा रहा है कि 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर के लिए आज. पहला है हेल्थ, सेफ्टी और ट्रस्ट. आप जो भी बोले, भरोसा. जिसके साथ भी आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो ब्रांड हो या एक दुकान हो या एक डीलर हो, भरोसा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. क्या वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आपके हाइजीन स्टैंडर्ड्स, आपके हेल्थ स्टैंडर्ड्स, आपके सोशल डिस्टेंसिंग स्टैंडर्ड्स. तो जहाँ भरोसा ज़्यादा होगा वहाँ पे बिजनेस बेहतर होगा. सो ट्रस्ट एंड सेफ्टी इज नंबर 1 ट्रेंड अकॉर्डिंग टू अस, एंड आप सबको भी अपने बिजनेस में उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा.
दूसरा बहुत बड़ा ट्रेंड है डिजिटल। आई थिंक उस पर आज के सेशन में बहुत बात होगी, बट इंडियन जो कंज्यूमर है वो सबसे ज़्यादा डिजिटल savvy है। हम लोग दुनिया के टॉप 20 देशों में रिसर्च कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन पीरियड में अगर हम सवाल पूछे कि कौन सबसे ज़्यादा कंज्यूमर नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम देख रहे हैं, कौन से कंज्यूमर सबसे ज़्यादा डिजिटल गेम्स डाउनलोड कर रहे हैं, कौन से कंज्यूमर सबसे ज़्यादा डिजिटल रिसर्च कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा नाम इंडियंस का आ रहा है। इट इज़ हाईएस्ट। तो हमें लगता है कि डिजिटल एज अ चैनल, डिजिटल इन योर वेज ऑफ वर्किंग विल बी अ वेरी बिग ट्रेंड। तो उसका काफ़ी इम्प्लीकेशन है आपके बिजनेस पे। जो आप लोग रिटेलर्स हैं, यू विल हैव टू थिंक ऑफ सेलिंग डिजिटली। जो आप होलसेलर्स हैं, डीलर्स हैं, ऑल्सो आपको भी देखना होगा कि आपके बिजनेस माध्यम में आप डिजिटल का कैसे यूज़ करें। सो वो दूसरा ट्रेंड है। तीसरा ट्रेंड है व्हाट वी कॉल एज फ्रूगैलिटी एंड वैल्यू माइंडसेट। सो हर एक कंज्यूमर, इवन हायर एंड ऑफ द कंज्यूमर के दिमाग में एक अनसर्टेनिटी है। हमें भी ले लें तो हम सबके बिजनेस में अनसर्टेनिटी है। पता नहीं अगला क्वार्टर कैसा होगा, ये साल कैसा होगा, इनकम कैसा होगा। तो हर कंज्यूमर के दिमाग में एक डाउट है, एक संदेह है। तो आई थिंक सब जन थोड़ा सा फ्रूगल रहेंगे, खर्चा करते टाइम ज़्यादा सोचेंगे, दे विल लुक टू डाउन ट्रेड अ बिट। तो ये एक और ट्रेंड है और मैं इन सब पे आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है, बट हाईएस्ट लेवल पे पहले मैं ट्रेंड्स बताता हूँ। और चौथा जो ट्रेंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्वीनियंस का। आज कोई हर चीज़ में लोग कन्वीनियंस चाहेंगे, जितना हो सके उनका एक्सपोजर बाहर के दुनिया के लिए कम हो की तरफ। द एग्जाम्पल कि भाई व्हाट्सएप पे मैंने ऑर्डर कर दिया और मेरे पास आ जाए। आप फूड को देख लीजिए, एक रेवोल्यूशन हुआ है फूड में, इंडिया में फूड डिलीवरी में, और धीरे धीरे रेस्टोरेंट्स का 30, 40, 50% बिजनेस अब डिलीवरी में परिवर्तित हो गया है। तो दैट इज अ ट्रेंड वेयर कन्वीनियंस की वजह से लोग चाह रहे हैं कि सब घर बैठे सुविधा से मिले। तो ये चार जो है हाईएस्ट लेवल पे हमारे हिसाब से ट्रेंड्स हैं। अगर मैं इन एक एक को लूँ और आपके बिजनेस पे क्या उसका इम्प्लीकेशन है वो समझाऊं, तो डाइवर्सिफिकेशन एक पहला इम्प्लीकेशन आता है। आपको अगर 80% पे ओवरऑल बिजनेस होगा तो क्या आप सबका बिजनेस 80% पे होगा? नहीं, किसी का हो सकता है ग्रोथ में भी आ जाए और किसी का हो सकता है 50% पे आए। अगर आप बिजनेस जैसे कर रहे थे 6 महीने पहले वैसे ही बिजनेस करेंगे, विच मीन्स वही प्रोडक्ट वही माध्यम से उसी कस्टमर को बेचने की कोशिश करेंगे, तो शायद आपका बिजनेस पहले से और कम होगा। बट अगर आप डाइवर्सिफाई करने की सोचे, और डाइवर्सिफाई कैसे कैसे हो सकता है, एक है ज्योग्राफी। आप सबके स्टेट में, आपके रीजन में बहुत ज्योग्राफीज है। टियर 2, टियर 3 टाउन्स में शायद इम्पैक्ट कम होगा। बहुत स्ट्रांग हमारा ये बिलीफ है कि वो लोग अब ट्रैवल नहीं करेंगे, बड़े शहरों में नहीं आएंगे। इवन रूरल गांव में इंडिया में काफ़ी अपर एंड सेगमेंट के बहुत कंज्यूमर है जो कल तक बड़े शहरों में आके लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदते थे। क्या हम उनको किसी तरह से सर्व कर सकते हैं? वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक आपका ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन हो गया। प्रोडक्ट में आप क्या ब्लेंड्स का सोच सकते हैं। अगर आपके कुछ कस्टमर्स डाउन ट्रेड करेंगे तो क्या प्योर लिनेन की बजाय कुछ ब्लेंड्स हम उनको ऑफर कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन हम सोच सकते हैं। रिटेल में स्पेशली आप होलसेल पार्टनर जो हैं, अगर आप कुछ आउटलेट्स अभी सर्व कर रहे हैं तो और कैसे आउटलेट्स को एक्सपैंड कर सकते हैं, नए आउटलेट्स ऐड कर सकते हैं, नए काउंटर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये सब डाइवर्सिफिकेशन के एग्जांपल्स हैं आपके बिजनेस में। अगर मैं कंज्यूमर प्रेफरेंस की बातें जो मैंने बोली थी, जो 4 ट्रेंड है, तो उसमें आई थिंक आपको क्लियरली स्पेशली रिटेल पार्टनर्स को दूसरे तरह से सर्व करने का सोचना होगा। क्या आप बड़े कॉलोनीज को टारगेट कर सकते हैं आपके इलाके में और डायरेक्टली उनको सर्व कर सकते हैं? क्या आप पैम्पलेट बांट सकते हैं और बोल सकते हैं कि हम घर लेके आ सकते हैं? क्या आप आपके मास्टर या पार्टनर टेलर को घर भेज सकते हैं एक सेल्स पर्सन के साथ, रादर देन वो आपके स्टोर आए? तो वेरियस तरह से आप जो है अलग तरह का बिजनेस मॉडल सोच सकते हैं इन कंज्यूमर नीड्स को पूरा करने के लिए। तीसरा आपके जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन आएगा वो होगा कोलैबोरेशन का। आप कल तक अगर बिजनेस एक साइलो में कर रहे थे, अपने एक दीवार के साथ कर रहे थे, तो वो चेंज करके कोलैबोरेट करना बहुत ज़रूरी होगा। और कोलैबोरेट आपके फ्रंट एंड चैनल और दुकान रिटेलर्स के साथ, और ब्रांड और हमारे साथ मैन्युफैक्चरर और ब्रांड के साथ। और कोलैबोरेशन का मतलब है कि जैसे विजिबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री, कितना माल किस
कपड़े का हमारे पास पड़ा है, स्टोर में पड़ा है, आपके वेयरहाउस में पड़ा है, कितना उठाना, पहले हम बल्क में डील कर रहे थे, उन मॉडल्स को थोड़ा चेंज करना होगा, ज़्यादा विजिबिलिटी लानी होगी, ज़्यादा कोलैबोरेशन के साथ काम करना होगा। अगर हम आप FMCG इंडस्ट्री देखें जो थोड़ा सा हमारा मानना है कि आगे है इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी चैनल मैनेजमेंट में, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स काफ़ी क्लोजली कोलैबोरेट करते हैं ब्रांड्स के साथ, और उससे बहुत फ़ायदा होता है ब्रांड्स एज वेल एज चैनल को। तो उसी तरह से हमारा मानना है कि टेक्सटाइल और कपड़े की इंडस्ट्री में भी ये होना पड़ेगा इन द नियर फ्यूचर, और इस क्राइसिस की वजह से ये शायद थोड़ा सा एक्सिलरेट होगा। और आखिरी पॉइंट जो मैं बोलूँगा वो है एजिलिटी। आई थिंक एजिलिटी, स्पीड, फुर्ती हमारे बिजनेस में थोड़ी ज़्यादा लानी होगी। पहले हम 6 महीने के लिए प्लान करके, 3 महीने के लिए प्लान करके चीज़ों को लेते थे, रखते थे और होप करते थे कि बिकेगा। स्पेशली अगर आप देखें इन्वेंट्री इस इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। आप सबका कैपिटल जो है वो स्टॉक में बहुत लगता है, और हम एक बार कुछ खरीद लेते हैं तो होप करते हैं कि वो बिकेगा आगे, और नहीं बिकता है तो वो पड़ा रहता है। तो वो एजिलिटी टू देखना, ये देखने में कि क्या बिक रहा है, क्या डिमांड में है, अगर नहीं है तो क्या उसे हम ऑफर के साथ में जल्दी मूव कराएं, डिस्काउंट्स देखें। रेडीमेड गारमेंट में ये थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ पे भी उतना एजाइल नहीं है, बट रिलेटिवली आपसे थोड़ा ज़्यादा एजाइल है कि अगर कुछ मूव नहीं कर रहा है तो क्या हम ऑफर, मार्कडाउन, डिस्काउंट की तरह उसको जल्दी से आगे बढ़ाएं और नया फ्रेश माल स्टोर में लेके आएँ। तो ये सब एग्जांपल्स हैं जहाँ पे एजिलिटी आपके बिजनेस में आपको वापस से थोड़ा सोच के लाना होगा। सो ये हमारे हिसाब से कुछ ट्रेंड्स हैं, और उनका जो है इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे और आपके बिजनेस मॉडल पे आता है। आई थिंक दिस इज व्हाट आई हैड टू शेयर। आई विल पॉज हियर एंड देन पास इट ऑन टू श्रुति। और मैंने डिजिटल और टेक्नोलॉजी के बारे में ब्रीफली बात किया था, बट वो एक टॉपिक है जो आई थिंक बहुत ही महत्वपूर्ण है आज। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो योर बिजनेस। तो I think we have Swagata ji here with us, who's a specialist there. So maybe he'll also share some more insights, थोड़ा detail में उस area में. But Shruti, over to you. Thanks, Siddharth. Some really valuable inputs there. Diversification, customer access, collaboration, and speed. I think 4 big pillars that can help us win. So thank you for that. हमारे तीसरे पैनलिस्ट आज के लिए हैं मिस्टर सुगाता बासु। सुगाता हमारे चीफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ऑफिसर हैं फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप। आपने दोनों सत्यकी एंड सिद्धार्थ को सुना दैट डिजिटल इज गोइंग टू बी वन की एरिया फॉर अस। इनफैक्ट कोविड के कारण हम सभी डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं, और इसलिए टुडे सुगाता इज हियर विद अस। सुगाता, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कंपनी क्या कर रही है टू बिकम मोर डिजिटल, एंड दूसरा हमारे चैनल पार्टनर्स क्या कर सकते हैं टू मूव मोर डिजिटल। थैंक यू श्रुति। इट्स अ प्लेजर टू बी डिजिटली विथ यू फोक्स। आई थिंक डिजिटल वर्ड पिछले दोनों सेशन में काफ़ी बार हम सुन लिए हैं। आई थिंक दैट इज़ प्रॉबेबली आगे का रास्ता डिजिटली रास्ता होने वाला है काफ़ी बिजनेस में। आई थिंक हमारा जो बिजनेस है बहुत टच एंड फील बिजनेस है। आई थिंक फ्रॉम अ प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव ऑल्सो, व्हेन कस्टमर्स गो इनटू आवर स्टोर और गो इनटू आवर पार्टनर्स शॉप्स, व्हाट दे डू इज टच द प्रोडक्ट टिपिकली, एंड उनको तब अच्छा लगा तो आगे बढ़ते हैं। फिर सेकेंड पार्ट है जब टेलरिंग है, वहाँ पे भी टच एंड फील है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ contact is the typical nature of our business so far, and Satyaki mentioned about the 6 feet economy which is coming in. So our primary focus of touch and feel वही अभी disturb हो जाएगा. Customer is probably now looking at beyond touch and feel. So we as the partners, how do we do that is where digital comes in and has a big play. अगर आप देखेंगे तो फूड बिजनेस इज प्रॉबेबली वन ऑफ द रिस्कीस्ट बिजनेस। टिपिकली अगर तबीयत खराब होगा आप बोलेंगे बाहर का खाना मत खाओ, बट अगर आप हमारे गवर्नमेंट पे देखेंगे फूड डिलीवरी इज प्रॉबेबली द फर्स्ट थिंग विच वाज अलाउड, एंड द पार्टनर्स इन दैट बिजनेस हैव गॉट टुगेदर एंड यूज टेक्नोलॉजी टू स्टार्ट सर्टिफाइंग कि मेरा जो बंदा खाना लेके आ रहा है
उसका टेम्परेचर 35 डिग्री है, ये खाना बना था कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। तो क्या हो रहा है, आई थिंक सिद्धार्थ मेंशन ट्रस्ट, तसल्ली। हमें जब तसल्ली होती है कि जो चीज़ हमारे पास आ रहा है वो सेफ है, फिर हम उसको खरीदने के लिए या कंज्यूम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हमारे धंधे में हमें हमारे कस्टमर को ये तसल्ली देना है और हमें ज़्यादा ऑप्शन देना है। अगर हम टच एंड फील नहीं उनको प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा रिलक्टेंस है आने के लिए, थोड़ा रिलक्टेंस अगर स्टोर में आए तो भी फैब्रिक छू के टच करने में, 6 फीट डिस्टेंस में आप कितना फैब्रिक टच करेंगे, कितने सारे फैब्रिक देखेंगे। तो प्रॉबली डिजिटल यूज करके हम ज़्यादा सैंपल्स दिखा सकते हैं, ज़्यादा डिज़ाइन दिखा सकते हैं, ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो ऑप्शंस बढ़ाना, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स बढ़ाना, हमने जो सेफ्टी फीचर्स हमारे फैक्ट्री में या हमारे स्टोर में या हमारे दुकान में डाला है उसको विजिबली कस्टमर को दिखाना, दिस इज वेयर डिजिटल विल हैव अ बिग रोल टू प्ले। And I think a lot of learning we will take up from the food business, which is very similar to the kind of business it is. रोटी कपड़ा मकान इस हम लोग इन इंडिया हम हर समय ये बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान प्राइमरी है, और इस प्राइमरी चीज को अगर हमको सेटिस्फाई करना है तो हमें कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट करना पड़ेगा। आज का कस्टमर चाहेगा, somebody mentioned, कि डिलीवरी मेरे घर पे हो जाए। हम प्रीमियम प्रोडक्ट हैं, अगर हमारे कस्टमर्स प्रीमियम हैं, हम डिलीवरी घर पे कैसे कर सकते हैं कि उनको तसल्ली हो जाए कि ये चीज़ एकदम सेफ आ रहा है, हम बक्से से निकाल के इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं या चलो एक वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द थिंग्स विच it's not that digital will do everything, but digital and physical together have to convey the message of safety, convenience, comfort, and most importantly that we continue to be the premium product in business. So that's one of the things where digital will have a big play. अगर आप हमारे चेन को भी देखेंगे, आज के तारीख में हम अपने पार्टनर लोगों से इंटरेक्शन भी ट्रैवल करके करते हैं, स्वॉचेस ले जाके करते हैं। हो सकता है ये कम हो सकता है ये उतना इजी ना हो आगे करना। तो अभी हम लोग सैंपल्स भी डिजिटाइज, स्वॉचेस को डिजिटाइज करेंगे, हम अभी ऑर्डर बुकिंग प्रोसेस को डिजिटाइज करेंगे, ताकि आप बहुत सारे मटेरियल आपको पहले से मालूम है, जो नए चीज़ हैं आप वो कंप्यूटर स्क्रीन पे देख के सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो उस फैब्रिक को ड्रेप करके देख सकते हैं मॉडल्स पे कि कैसा लगने वाला है। और ऑर्डर बुकिंग प्रोसेस हो सकता है पहले आप महीने में 1 बार या 2 बार करते थे, अगर आप डिजिटली करेंगे तो इट कैन बिकम मेनी टाइम्स, द सेम थिंग बिकम्स मच ईजियर, मच फास्टर। सो फॉर आवर पार्टनर्स द डिजिटल थिंग हैज टू मेक द लाइफ ईजियर। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स विच maybe we will try and work very closely with you all ki how will digital help this whole thing become easier for you. The other piece is also that digital से आपको कस्टमर का इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप उस इंफॉर्मेशन को बराबर से प्रोसेस करेंगे, एनालाइज करेंगे, हो सकता है आपको ऐसे इंसाइट्स मिले विच हेल्प्स यू डू बेटर। आई थिंक सिद्धार्थ वाज मेंशनिंग दैट अगर हम पहले जैसे बेचते थे वैसे ही बेचते रहेंगे तो हो सकता है हम एक लिमिट तक पहुँचेंगे, बट अगर हम और इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसका एनालाइज करेंगे, मे बी वी कैन सेल मोर, मे बी वी कैन सेल डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो टू द कस्टमर. So these are the ways in which I feel digital can really help the business tide over the COVID thing in the short term also, and probably become the way forward. आगे का रास्ता हो सकता है 50-60% डिजिटल में ही कंटिन्यू हो, क्योंकि हो सकता है इस देश का पूरा माहौल ही बदल जाएगा इस कोविड क्राइसिस के बाद. I think Shruti, that's what I wanted to say from a digital perspective. Thank you so much, Sugata. Like you rightly said, digital को use करके शायद हम speed से और samples दिखा सकते हैं. We can perhaps reach out to more retailers and partners. So digital, and it may become the key mode of operations given the current scenario. So thank you so much for that. I will just like to remind हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं अभी, अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहें तो आपको अपनी स्क्रीन पे एक चैट बॉक्स दिख रहा होगा, आप वहां पर जाके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. Our next panelist, our fourth panelist for today is Mr. Vishwanathan Rajendran. Mr. Vishwanathan is also a partner at Kani. He comes with tremendous experience in the sales, marketing and retail domain. So again, I'm looking forward to some great insights from him. Vish, the specific question to you that we would like to ask is, for global markets that have opened up, especially China, we've heard
stuff like revenge shopping. So we've heard a trend which is called revenge shopping. Linen plays in the premium category. How do you see this particular category shaping up, and any advice you may have for our channel partners today? Thank you, Shruti. First of all, I will start with a couple of apologies. First, I couldn't, मेरे computer में I couldn't change the background to the blue background that all the other participants have. It's a computer error, nothing else. Second, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं हिंदी में थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश करूँगा, तो पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन हुई थी कि हम बाकी देशों से क्या सीख सकते हैं, और उसमें सबसे खास है चाइना से हम क्या सीख सकते हैं। चाइना में कोरोना लॉकडाउन के बाद जब वो खत्म हुआ तो क्या हुआ कि चाइना में दे कंप्लीटली किल्ड द वायरस टू द इफेक्ट दैट दे हैड 0 न्यू केसेस हैपनिंग व्हेन दे ओपन द इकोनॉमी, सो दे वर रिलेटिवली सेफ व्हेन दे ओपन। और जब इकोनॉमी शुरू हुआ दे हैड दिस वेरी सरप्राइजिंग ट्रेंड कॉल्ड रिवेंज बाइंग। तो रिवेंज बाइंग क्या है? चाइना के लग्जरी कंज्यूमर जो हैं, लग्जरी कंज्यूमर इज द रिचेस्ट कंज्यूमर्स, वो लोग लग्जरी शॉप्स के बाहर क्यू में खड़े हो गए। सो जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ शंघाई में, बीजिंग में, द रिचेस्ट कंज्यूमर्स वेंट एंड स्टूड इन क्यू आउटसाइड अ गुची स्टोर, अ हर्मेस स्टोर, ऑल वेरी लग्जरी यूरोपियन ब्रांड्स। और वहां पे ऐसे काफी सारे अपैरल और फुटवेयर ब्रांड्स हैं जो लॉकडाउन के बाद पहला दिन अपने लाइफ टाइम हाईएस्ट सेल किए थे। So there were some shops in Shanghai that did 3 months of pre-COVID sales in 1 day after COVID. So ये revenge buying was a very surprising trend for everybody in the world. तो basically क्या हुआ वहाँ पर, जो rich consumers हैं वो हम लोग सब जब घर में पड़े हुए हैं, काफी पके हुए हैं, we are tired, our lifestyles are interrupted. पहले हम लोग महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार कम से कम तो शॉपिंग जाते थे, मॉल में जाते थे, दुकान में जाते थे और शॉपिंग करते थे। पर्टिकुलरली द लिनन क्लब कंज्यूमर जिनके पास हु आर प्रीमियम कंज्यूमर्स, हु आर अमॉन्ग्स द टॉप सेगमेंट्स इन इंडिया एंड हु हैड द एबिलिटी टू स्पेंड, शॉपिंग वाज बोथ अ नेसेसिटी एंड अ लाइफस्टाइल। और ये कोविड क्राइसिस के बाद दैट लाइफस्टाइल हैज बीन इंटरप्टेड। देयर इज, जैसे सत्यकी जी ने बताया, थोड़ा बहुत पेंट अप डिमांड है, बट थोड़ा बहुत गुस्सा भी है लोगों को, they are just frustrated with not being able to shop. So जब लॉकडाउन खत्म हुआ, people went to the stores, stood in a queue and bought really expensive products, and that is for every brand in the world, that is a big reason for hope, which just says कि जो अमीर कस्टमर हैं, or the top of the end customers, they want to buy, they want to be offered products that they can buy. पर क्या चाइना में जो हुआ वो इंडिया में होगा? वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं होगा। चाइना और इंडिया काफी अलग मार्केट है, पर हम थोड़ा लर्निंग ले सकते हैं और हमें ये भी समझना चाहिए कि चाइना कहाँ पर अलग है और इंडिया कहाँ अलग है। सबसे पहले व्हाट इज स्पेशल अबाउट चाइना, जैसे मैंने बताया, चाइना में जब उन्होंने इकोनॉमी ओपन किया तभी दे केम टू 0 केसेस। तो फॉर अ कंज्यूमर टू गो आउट एंड बाय, वो डर नहीं था। अभी हमारे जो टॉप 5 मेट्रोस हैं, कंज्यूमर्स आर एक्चुअली इवन मोर स्कैर्ड देन दे वर 3 months बैक। अभी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, सब जगह में बता रहे हैं कि 1 लाख केस बहुत जल्दी हो जाएगा, ये महीने के अंदर हो जाएगा। और इसलिए ये मेजर स्पेंडिंग हब्स जो है, वहां पर कंज्यूमर इतना जल्दी बाहर नहीं जा सकते हैं और क्यू में तो खड़े ही नहीं हो सकते। पर हमारे जो छोटे शहर हैं, मान लीजिए कोयम्बतूर है, हैदराबाद है, ये सब शहर में शायद हो सकता है कि कंज्यूमर्स विल कम बैक टू द स्टोर फास्टर देन वी ऑल इमेजिन। तो एक पॉजिटिव सरप्राइज हम सबके लिए शायद वेट कर रहा है। दूसरा, चाइना इज अ लॉट मोर रिचर मार्केट। मैं बस एक स्टैटिस्टिक दूंगा, ये जो लग्जरी मार्केट जो है, उसका एक इंडिकेटर है वो लग्जरी कार कितना बिकता है। तो ये BMW, ऑडी, मर्सिडीज बेंज जो है वो इंडिया में 40,000 बिकता है साल में रफली। चाइना में वो 30 लाख बिकता है साल में। तो 40,000 और 30 लाख, तो चाइना में वो लग्जरी मार्केट एकदम बड़ा है। तो हमारा लग्जरी मार्केट इतना बड़ा नहीं है, पर मेरे ख्याल से जो चाइना में लग्जरी में हुआ वो हमारे प्रीमियम में होगा। So most likely brands like Linen Club, Allen Solly, Louis Philippe, Raymond, these brands will see some positive interaction. But there will be a difference between brands. कुछ brands का काफी बड़ा डिमांड होगा, कुछ brands का काफी कम डिमांड होगा,
that depends on the product mix that we are all selling. देखिए ऐसे है कि हमारा जो लाइफस्टाइल अभी चेंज हो गया है कि हम ऑफिस वेयर इतना डिमांड में नहीं है. फॉर लॉट ऑफ ऑफिस गोइंग प्रोफेशनल्स द occasions to go to office have reduced in the short term. So वुल का इतना डिमांड होगा पता नहीं. तो मैं ये लॉकडाउन के पहले 3 सूट ऑर्डर किया था, वुलन सूट, और जब से आया तब से वो अंदर पड़ा हुआ है और बर्बाद हो रहा है. मेरे ख्याल से जो कैजुअल वेयर है वो उसका डिमांड काफी ज्यादा होगा. अभी हम सबको एक नया ट्रेंड पता चल रहा है. इट्स कॉल्ड जूम वेयर, क्योंकि जूम कॉल में कौन सा कपड़ा अच्छा लगता है. And that clothing might be very different from the clothing that people use to normal day-to-day work. तो जो भी ब्रांड ये वाले ट्रेंड पे कैपिटलाइज करेंगे, that will succeed. And I think वहाँ पे लिनन कप के लिए काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है. Linen is comfort wear, linen is casual wear, and linen is much more suited for the COVID crisis. जब हम लॉकडाउन में हैं, linen might be much better than other alternatives. The third thing that we need to compare between China and India is that, because of the fact that the virus is not completely killed in India for the next 2-3 months, the demand will be there, but the demand will not be in the form of consumers standing in front of the store. तो अगर डिमांड कंज्यूमर के पास जाएगा, मुझे तो शर्ट खरीदना है पर मैं स्टोर के बाहर जाके खड़ा नहीं रहूंगा. पर अगर कोई रिटेलर मुझे रीच आउट करेगा और मेरा परचेसिंग इजी करेगा तो मैं वहां से लूंगा. सो द डिमांड माइट कम बैक समवॉट लाइक चाइना, बट इट कैन बी कैपिटलाइज्ड ओनली इफ द रिटेलर्स रीच आउट टू द कस्टमर्स. तो ये अगर चाइना जैसे रिवेंज बाइंग होगा कि नहीं, उसका सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट है कि हम उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं. चाइना में रिटेलर्स को कंज्यूमर के पास जाना नहीं पड़ा, हमें जाना पड़ेगा. आपको अपने CRM डेटाबेस में हर कस्टमर को कॉल करना पड़ेगा, कभी कभी ऑफर्स देने पड़ेंगे, शायद आपको कंज्यूमर हाउसिंग सोसाइटीज में जाके स्टॉल लगाना पड़ेगा, शायद आपको टेलर को घर भेजना पड़ेगा. अगर आपके पास कस्टमर के मेजरमेंट्स हैं तो उसके बेसिस पे आपको कुछ टेलीफोन व्हाट्सएप के द्वारा ऑर्डर फुलफिल करना पड़ेगा. तो ये जो काम है डिमांड को फुलफिल करना, ये हमारे हाथ में रहेगा. कंज्यूमर आके हमारे दुकान के बाहर खड़ा नहीं रहेगा. तो दैट इज अ वेरी मेजर इम्प्लीकेशन. नाउ व्हाई आई एम सेइंग इट्स मेजर इज बिकॉज अभी मेरे ख्याल से 1-2 महीने में हमारा फेस्टिवल सीजन वाला बुकिंग और डिमांड शुरू हो जाएगा. ये वाले फेस्टिवल सीजन में कंज्यूमर्स 6 महीना घर के अंदर बैठे हुए हैं, काफी लोग. वो लोग ये बार फेस्टिवल में स्पेंड करेंगे ही, क्योंकि this festival will be a very different festival season from everything else we have seen. तभी हमें कैपिटलाइज करना है तो हमें अपना ऑपरेशन चेंज करना पड़ेगा. We need to go, we need to sell, and we need to make it easy for the consumer to buy. ये सब के बारे में जसविंदर जी और भी डिटेल में बात करेंगे. आई थिंक वो मेरे बाद ये रिटेल बेस्ट प्रैक्टिसेस बात करेंगे. बट मैं एंड में यही बताऊंगा कि देखिए, जो डिमांड प्रीमियम कस्टमर में गया है वो वापस आएगा. 1 महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा, वो कोई भी बोल नहीं सकता है, बट ये साल के अंदर तो मोस्ट लाइकली आएगा ही. और मोस्ट लाइकली हम इंडियन फेस्टिवल्स के लिए शॉप करते हैं. वो जो पीरियड है अगस्त से लेके जनवरी मकर संक्रांति तक, तब तक कंज्यूमर्स का एक स्पेंडिंग स्पाइक होगा. तो हम सबको अपना ऑपरेशन, अपना परचेसिंग, अपना प्लानिंग, हमारा डिजिटल वेज ऑफ वर्किंग, ये सब तब तक काफी ठीक ठाक करके रखना है. तभी हम ये डिमांड को कैपिटलाइज कर सकते हैं. नहीं तो कंज्यूमर घर पे ही रहेंगे और हमारा सेल्स भी वहीं का वहीं रहेगा. विद दैट, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. बैक टू यू श्रुति. थैंक्स विश. आपका हिंदी एक्चुअली इज क्वाइट गुड, and thank you for the nugget that the customer may not come to us, but we will have to go to the customer in all ways possible. Our fifth panelist, I think आप में से बहुत लोग उन्हें जानते हैं और पहचानते भी हैं. Mr. Jaswinder Kataria, who has recently taken over as the Chief Manufacturing Officer for our linen, wool and cotton business. इससे पहले Mr. Kataria was the head of sales for our linen and cotton business. So, sir, what we want to understand from you is, आपके अनुसार हमारे चैनल पार्टनर्स अपने काम में क्या परिवर्तन ला सकते हैं जिससे सेल्स में उनको कुछ ग्रोथ मिले?
गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार। पैनल में लास्ट बोलने का नुकसान ये है कि जितने पॉइंट मैंने लिखे थे कि मैं बोलूंगा वो सारे 4 के 4 बोल चुके हैं, सो देयर विल बी लॉट ऑफ रिपीटेशन, बट रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है उस रिस्पेक्ट से। सो हमें क्या बदलाव करने हैं, व्हाट न्यू थिंग्स वी नीड टू डू, फॉर दैट हमें समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर का माइंडसेट क्या है आज की तारीख में। क्या उसके पैटर्न, उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस हैं। I think Mr. Ghosh has spoken a lot about it, Sid has spoken a lot about it. But कुछ facts जो हैं जो which we have to be mindful are कि consumers walk-in थोड़े कम होने वाले हैं in immediate future. उनके spends बहुत सोच समझ के करने वाले हैं, पहले वो necessity की चीज़ें खरीदेंगे, ये सारी चीज़ें रहेंगी उनके दिमाग में। और उसके साथ साथ एक फियर, एक एप्रीहेंशन है कि मैं घर से बाहर निकलूं कि नहीं निकलूं, जिस शॉप पे मैं जा रहा हूं वो सेफ है कि नहीं है। सो ये सारी चीजें उसके दिमाग में रहेंगी। वो जो चीजें वैल्यू करता था वो बदल जाएंगी। टू गिव ए सिंपल एग्जांपल, पहले अगर वो आपकी शॉप में आता है, पहले सोचता होगा व्हाट ही वैल्यूज इज कि इस बंदे ने मेरे को चाय पूछी है कि नहीं पूछी है, बैठने के लिए बोला है कि नहीं बोला, कुछ खाने के लिए ऑफर कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें वैल्यू होती थी। आज की तारीख में शायद वो चाय और खाने को वैल्यू नहीं देगा जितनी वैल्यू वो सेफ्टी, हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग को देगा। सो आई थिंक उस तरह से वैल्यूज और किन चीज़ों को वो मायने देता है वो सारी बदलने वाली हैं। और इन चीज़ों को देखते हुए और ये कि जब मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, जिस शॉप पे जा रहा हूँ वो सेफ है कि नहीं है, हमें एक एनवायरनमेंट बिल्ड करना पड़ेगा, एक पिलर्स बिल्ड करने पड़ेंगे जिसके बेसिस पे हमारा बिजनेस रीबिल्ड हो सके। तो उसके इसमें 4 चीजें मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि सिद्धार्थ ने भी एम्फेसाइज किया, विच इज ऑन ट्रस्ट ऑफ सेफ्टी। सेकेंड विल बी कम्युनिकेशन, जो हम कर रहे हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड प्रोडक्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि हम क्या एड ऑन सर्विसेज, क्या डिजिटल इंटरवेंशन कर सकते हैं इस पूरी एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए। और फोर्थ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जब क्योंकि इंटरेक्शन उस शॉप में आ रहा है, क्या हमारा स्टाफ और स्टाफिंग नॉर्म्स कैसे चेंज होंगे। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें जो कि रिलेटेड है ट्रस्ट के साथ, तो सबसे पहले सोचेगा क्या ये शॉप मेरे लिए सही है कि नहीं है, क्या सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं कि नहीं लिए गए हैं। सो कंज्यूमर विल प्रिफर टू शॉप वेयर सेफ्टी एंड हाइजीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट इज देयर। सो आप सबने ये वर्ड्स बहुत सुने होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, थर्मल स्कैनिंग, मास्क फॉर स्टाफ, मास्क फॉर एम्प्लॉय। सो इन सब चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगा, बट ये चीज़ें अब जिसे बोलते हैं ना पार्ट ऑफ SOPs नहीं रह गए, ये मस्ट है। सो दिस इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड। अगर ये नहीं है तो कंज्यूमर वॉक इन भी नहीं करेगा। कंज्यूमर आप इस चीज़ों को किस तरह से बेहतर करते हैं, कितने अच्छे तरीके से करते हैं, वो हमारा डिफरेंशिएटर फैक्टर होगा कि वो किस शॉप में एंटर करता है, जहाँ पे कि उसको ट्रस्ट होगा कि मेरा ध्यान रखा जा रहा है, मेरी सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। किस तरह से बिना टच किए हम टेलरिंग कर सकते हैं, किस तरह से मेजरमेंट्स ले सकते हैं, किस तरह से ट्रायल्स करवा सकते हैं, हमारे ट्रायल्स रूम को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स होंगे जो ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। पर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उसको आपके शॉप पे आना पड़ेगा, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ये सारी चीजें, जो सेकंड चीज बात कर रहा हूं मैं कम्युनिकेशन की, कि कैसे हम ये प्रोएक्टिवली कंज्यूमर को ये सारी चीजें बताएंगे। आज की सिचुएशन में कम्युनिकेशन हैज टू बी इज इम्पॉर्टेंट, पहले भी रहा है लेकिन आज की तारीख में बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये कम्युनिकेशन बहुत सेंसिटिवली हमें हैंडल करना पड़ेगा। नाउ हेलो, सो बहुत सेंसिटिवली हमें हैंडल करना पड़ेगा। वंस ही स्टेप्स इनटू योर शॉप, जो भी हमने कमिटमेंट किया उसको विल एक्सपीरियंस दैट। सो वी हैव टू लिव टू आवर एक्सपेक्टेशन, जो भी हम उनको बोल रहे हैं। थर्ड पिलर जो आता है इसमें, वो आता है कि हम एड ऑन सर्विसेज क्या देंगे। एड ऑन सर्विसेज में जो हमने सुगाता ने बात किया डिजिटल की, अपना सिद्धार्थ ने बात किया इन्वेंट्री की, तो किस तरह से हम उनको ये बताते हुए कि आज की तारीख में अगर उसका बिहेवियर देखें तो वो बोलेगा कि मैं शॉप में आ रहा हूँ बट आई स्पेंड लेस टाइम इन शॉप, ही विल बी वेरी फोकस्ड।
वो ये समझ के आएगा कि मेरे को कम से कम समय है, बट वो ये सोच के आएगा कि मुझे क्या खरीदना है। तो he'll be spending less time in your shop, he'll be browsing less. So किस तरह से हम उस पूरे एक्सपीरियंस को शॉर्टन कर सकते हैं, उसके पूरे परचेज साइकिल को शॉर्टन कर सकते हैं ताकि उसको जो चाहिए वो मिल। इस तरह से हम उसको ये पूरा का पूरा राइट फ्रॉम स्टोर लेआउट टू प्रोडक्ट टू सर्विसेज टू स्टाफ इंटरेक्शन, इस तरह का पूरा जो सर्विसेज का बंडल हम किस तरह से ऑफर करते हैं रिवाइज्ड फॉर्म में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। किस तरह से, अगर एक एग्जांपल लिया जाए, किस तरह से हम उसको पहले से इमेजेस व्हाट्सएप पे भेजते हैं ताकि वो शॉर्टलिस्ट कर ले और जब शॉप में आए तो हम उसको वही 4-5 ऑप्शन दिखाएं जिनमें से वो जल्दी से परचेज कर सके। किस तरह से हम अपने बेस्ट कंज्यूमर्स को अपॉइंटमेंट दे बुलाएं, एक तो वैल्यूड फील करेगा, ऊपर से जब वो आएगा तो स्टोर में और ज्यादा लोग नहीं होंगे, सो सोशल डिस्टेंसिंग वैल्यू सबके साथ उसका ध्यान रखा जा सकता है। किस तरह से जब वो आए तो हम लोग उसको टेलरिंग के उसमें उसका बेस्ट फिटेड गारमेंट उससे ले लें और उसको रेप्लिकेट करके उसको दे दें। I think those are the kind of few things which we can do in terms of add-on services. The fourth point, which is very, very important, is staff and staffing norms. So staff is something who is going to interact with the consumer, जो customer walk-in कर रहा है। तो और हमारे यहाँ पे अब स्टाफ के लिए भी सेंसिटिविटी रखनी पड़ेगी हमारे रिटेलर्स को, क्योंकि स्टाफ कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहा है और आज की तारीख में एवरीबडी वांट्स मिनिमम इंटरेक्शन, सो वी हैव टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स आवर स्टाफ हैज टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स कस्टमर। सो ये पूरी जो चेन है, ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे फ्रेंचाइजीज की, हमारे रिटेलर्स की। और क्योंकि वर्किंग आवर्स कम होने वाले हैं, हमारे डेज कम होने वाले हैं, तो किस तरह से हम अपने स्टाफ्स को मैनेज करते हैं, आई थिंक दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल। सो इन नटशेल अगर हम 4 चीजों का ध्यान रखें, वी keep consumer safety in mind while keeping business in mind, I think we can win. As Sugata said, digital tools का use करें, ऐसे contactless payments option use करें, अपने लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट बन गई है आज की तारीख में। लॉयल्टी नॉट एट ट्रांजैक्शनल लेवल, लॉयल्टी एट एन इमोशनल लेवल, कि वो जो कि ट्रस्ट की बात की है मैंने, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ इट। हम किस तरह से उनके विजिट प्लान्स कर सकते हैं और उनकी रिपीट विजिट्स करवा सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट which can help us revive faster than we think. That's from my side, Shruti. Thank you so much, sir. Some very useful, practical things that can be done at the retail end. I am now opening up the floor to questions. हमारे पास already questions आने शुरू हो गए हैं. Sugata, keeping in trend with all the digital conversation that we are having today, we have a participant, Mr. Mohit, who in fact said that he has started doing some digital selling. And he sees that while he started sending out pictures through PDF, etc., हमें पता है that fabric industry में touch and feel का बहुत महत्व है. So he's saying that while I WhatsApp, but the customer still wants to see, for example, a sample. And then he says when his team goes to the field, that time face-to-face interaction is more effective. So how do you think this play between physical and digital will play out, and digital sales में कैसे aid कर सकता है, keeping the reality of the textile sector in mind? I think मोहित जी आपका पॉइंट एकदम सही है। कस्टमर का एक्सपेक्टेशन जो है टच करके फील करके डिसीजन लेने का, वो उससे हम पूरी तरह से हट जाएंगे ये नामुमकिन है। बट एट द सेम टाइम क्या होगा, अभी आप देखेंगे टेक्नोलॉजी डेवलप भी हो रहा है और सस्ता भी हो जा रहा है। देयर इज डिलीवरी मैकेनिज्म में अभी बहुत सारे और ऑप्शंस आ गए हैं। अभी आप देखेंगे आप डोंजो या स्विगी से लोग खाना ऑर्डर कर रहे हैं, हो सकता है हम सैंपल्स भी भेज पाएंगे। सी कॉस्ट इज वन पार्ट, बट एज यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आपको और ऑप्शंस मिलेंगे। आप कुछ इंडस्ट्री में देखेंगे लोग अभी ड्रोन से दवा डिलीवरी कर रहे हैं। अभी हम प्रीमियम प्रोडक्ट है ड्रोन, इट मे सीम वेरी कॉस्टली, बट यू नो इफ यू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर डिटेल्स, टेक्नोलॉजी कॉस्ट खाली नीचे ही गिर रहा है, रैपिडली नीचे गिर रहा है। हो सकता है इस चक्कर में ऑल दिस रिमोट डिलीवरी प्रोसेस विल बिकम मच मोर इफेक्टिव एंड मच मोर चीपर। एंड दूसरा पार्ट है डिजिटल का कि
कभी कभी क्या होता है, आपने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 5 बार ट्राई किया, सक्सेस नहीं होता है। हर एक चीज का एक मोमेंटम पिकअप होता है। तो आप 15 बार ट्राई करेंगे, देखेंगे 16वीं बार सक्सेस होगा, और उसके बाद 16 से 50 जाने में आपको 2 दिन लगने वाला है। सो डिजिटल कोशिश करते रहना है। हो सकता है थोड़ा थोड़ा बदल के कोशिश करना पड़ेगा, बट धीरे धीरे लोगों को भी आदत लग जाती है डिजिटल की। Thank you for that, Sugata. My next question, Siddharth, is for you. We've been hearing about antiviral finish, nanotechnology, ऐसे नए products के बारे में हमें अभी market से काफी खबरें आ रही हैं. What do you think about these products? आपको लगता है कि इससे हमारी sales में we can get some uplift? जी, sure. हाँ, without doubt, I think uplift तो आएगा. अगर मैं अपना लॉजिकल माइंड लगाऊं तो कोविड की वजह से इन सब का डिमांड बढ़ना थोड़ा सा लॉजिकल शायद नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनकी वजह से इंसान को कोविड नहीं होगा या वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, बट ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है. देखिए, आज का कंज्यूमर इतना डरा हुआ है अबाउट दिस होल पेंडेमिक कि कोई भी चीज़ जो हेल्थ पे बेस्ड है या हेल्थ के प्लेटफॉर्म पे है, उसका अपने आप डिमांड बढ़ रहा है. अगर आप FMCG इंडस्ट्री देखें या फूड इंडस्ट्री देखें तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, एनीथिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, उन सब का डिमांड एकदम तेज़ी से भाग रहा है लास्ट कुछ हफ्तों में. तो वही अगर ट्रेंड में एक्स्ट्रापोलेट करूँ तो ज़रूर इवन कपड़ों में एंड रेडीमेड अपैरल में भी एनी प्रोडक्ट जिसमें कुछ कंज्यूमर को फ़ायदा है फ्रॉम अ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, वो ज़रूर डिमांड में आएगा. ऑल्सो ये एक ट्रेंड पहले से भी चल रहा था. अगर आप देखें तो इसको हम फंक्शनल प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जो कि बियॉन्ड फैशन जाके एक कुछ फंक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका डिमांड बढ़ रहा था. बट ये भी समझिए ये नीश है, ऐसा नहीं है कि ये आपके बिजनेस का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन बन सकता है ओवरनाइट. ग्रेजुअली होगा, बट आई एम श्योर इनका डिमांड आएंगे एंड ये आपके पोर्टफोलियो में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनेंगे. तो वी विल नीड टू अडॉप्ट दिस. हमारे ब्रांड का भी बहुत बड़ा रोल होगा इन प्रोडक्ट्स को बनाने में, R&D में, मार्केट करने में, बट आप सबका भी एक बड़ा रोल होगा इनको कस्टमर को मार्केट करने में और चैनल में एक्सेप्टेंस बढ़ाने में. तो आई सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन इन द चेन. Thank you for that, Siddharth. I would place the next question with Satyaki sir. So I'll combine a few questions. So we have a question from Mr. Dheeraj, who is our EBO partner from Udgir. But also a larger question that we know that post-COVID, a lot of change may come in terms of product price and consumer access. So, for example, Mr. Dheeraj has said that how can he capitalize on his catchment in terms of being able to market to them? So, are there any marketing tips that you would want to share? And at a broader level, what changes at product price and consumer reach can help us? So hi, Dheeraj ji, namaste. See, nobody is a magician. Nobody can tell you the price point at which demand will come. But I think there's some practical issues here that the customer will come and try to downtrade, right? So even as I said that there are 4 types of customers, and we service the more comfortably well off and people who live in here and now, people who will spend a bit, people who have some money. These are our direct or bullseye customer base. So they will in any case come and buy. I'm saying that in May, the stores that had opened are hitting 48% of their daily pre-COVID sales average, which is quite encouraging. And it's because it is Linen Club. It may not happen with everybody, but Linen Club, it can happen because it's a iconic brand in fabric, and also it's premium, and the customers are premium. So they're going to come back, some pent up demand. It's called YOLO, the feedback that Wish tried to give you, China revenge shopping, which is you live only once.
You only live once, YOLO. So people will come back and buy a little bit, but when they come, they will want value for money. If you combine all the answers that we are trying to give, value for money can come from your service. It can come from the way you showcase. It can come from the way you keep your store hygienic. It can come from various kind of things. Then Siddharth Jain talked about diversification. So you have to look at your product portfolio diversification. So you are maybe a EBO of Linen Club, but now in Linen Club we are saying that if you want, we can give you a little bit of Soktas material. It gives your customer another option of buying cotton when they come to you to buy linen. Also Soktas, though it is premium cotton and it is very expensive, it is cheaper than Linen Club, right? So if the customer comes and cannot buy at the Linen Club price point, maybe at Soktas price point with full margin you can still sell. So you can think of that. We are also, we discontinued this blend brand called Mazuri, but Jaspinder and team and Rajan and team are going to relaunch. We had a ready-made brand called Cavallo, right, which we are selling online. So now that will be called Cavallo Studio, like Linen Club Studio, but they will launch a fabric brand called Cavallo by Linen Club in the fabric, which will be all blends. So you should try and see, can you get into Cavallo blends also? Can your store keep Linen Club, because that's your most profitable? Your store is called Linen Club. That's your #1 product. But can you keep a little Soktas? Can you keep a little Cavallo? And can you give your customer a little diversification? Then your store's neighborhood. I think pamphleting is a good idea, but now people are not taking so much newspaper. Though they are saying that newspaper will not transmit. And if newspaper was transmitting, then the note, the currency that we are using, वो पेपर से ही ट्रांसमिशन हो जाता. लेकिन वो नोट तो आप भाजी वाले को दे रहे हो, भाजी वाले से ले रहे हो, फ्रूट वाले को दे रहे हो, उससे इतना नहीं हो रहा है. उससे होता तो इंडिया जैसा 130 करोड़ के कंट्री में 2.5-3 लाख नहीं होता, है ना, 3.5-4 करोड़ हो चुका होता. तो नोट से नहीं हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ न्यूज़पेपर से भी नहीं हो रहा है, तो पैम्फलेटिंग हो सकता है. एंड स्लोली पीपल आर बिकमिंग अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. आप सोचो 2 महीना पहले लोग सोच रहे थे घर से निकलेंगे तो कोरोना पकड़ लेगा. अभी जब कोरोना दिन का 10,000 हो रहा है, सब लोग रास्ते पे ही है, इवन इन बॉम्बे. तो उदगीर में भी लोग रास्ते में आ गए होंगे, तो न्यूज़पेपर भी घर पे पहुंचना चालू हो जाएगा. तो पैम्फलेटिंग एक अच्छा आइडिया है, बट व्हाट्सएप आज के दिन में बहुत अच्छा आइडिया है. If you want to do a digital catalog, our team can help. We are already helping. I can take name of 1 or 2 people. Mohit Agency, Calcutta. Jagrit Fashions, Calcutta. Soktas ke dealers who have made digital catalog of everything that they have with our help, with our IT team's help, with our designers' help, and the digital catalog they are sending to the retailers. So if you are a EBO, if you are really interested, our team can help you to make a digital catalog, and you can send the digital catalog to your consumers in your neighborhood. You'll have a database, so you send it to your thing. We will make it with Linen Club branding, Aditya Birla branding, your brand together, like we have done for MBOs. And your entire digital catalog can go, and choice can come from there. I told you example of Kemax Street, our Coco store. एक कस्टमर आसनसोल में एक ऑर्डर में 1.25 लाख का मान लिया है साहब, व्हाट्सएप में. कैश आया मेरे पास, जिस दिन दोपहर को बाई किया उस दिन शाम को हमने डिलीवरी कर दिया है उसके आदमी के हाथ में. 1.25 लाख रुपए का एक ऑर्डर. और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ दैट हमारे जो OTC के टीम है, जो आपके साथ टच में रहते हैं, राजन मल्होत्रा एंड टीम, इनको लास्ट 2-3 दिन से बहुत सारे EBOs से व्हाट्सएप में ऑर्डर आ रहे हैं. हमको 10 थान, 15 थान, 5 कॉम्बो बॉक्स, ये सब ऑर्डर आना चालू हो गया है डिजिटल में. तो ये 100% सक्सेसफुल होगा. और जैसा होगा तो बोल रहा है, पहली बार नहीं होगा, दूसरी बार नहीं होगा, 10वें बार नहीं होगा, 15वें बार नहीं होगा, बट 16 टाइम अगर सक्सेसफुल हुआ ना, 16 to 50 and 50 to 500 will be very fast scale up. India needs that much time to adapt digitally, but Indians are very fast. Siddharth talked about how Netflix, etc. We are seeing, you know, my mother-in-law stays in Calcutta alone. She's 77. She doesn't have a tablet. She has a smartphone. She has downloaded a OTT platform called Hoichoi, which is a Bengali OTT platform,
and she is watching movies on Hoichoi, she has registered herself. Means my wife spoke to her on the phone, but वही phone पे register करना है ना, साथ में नहीं कर सकती है. फोन पे सुन के पेपर में लिख के लेके उस किया एंड होइचोई में बंगाली फिल्म्स देखती है अभी. ये 2 महीनों का डेवलपमेंट है. 77-year-old woman, you tell me, your customers are between 35 and 45, rich male largely. Adoption will be very, very fast. You go digital as much as possible, and we are very transparent with you. If you are transparent to your stocks, you show us, you tell us which are the customers, we can help you do the whole thing. Saugata's team can help, Shruti's team can help, Rajan Malhotra's team can help, E.T. Kearney, our partners who are sitting here, who are called Kearney now, their team can help, Jaswinder can help, I can help. We are all with you. Thank you, Shruti. Thank you so much, sir. The next question is for you, Jaswinder, sir. The question is actually come from anonymous, so I don't know who's asked it. But essentially, we know that our entire sales process, from booking conference to finally product reaching distributor to retailer to end customer, there's a lot of showcasing of samples. So the question says that how can sampling become efficient, and what type of sampling will be useful given that we are a touch and feel category? So suggestion around how this process can be done better during these times. So I will request you to unmute yourself, please. Okay, can you hear me? Yeah. So if you look at our entire process of booking to delivery, then from dealers to retailers point, सारे पॉइंट्स पे हम लोग एक्चुअली वो काम करते हैं जो कि हेल्थ एडवाइजरी अगेंस्ट कोविड है. सो अगर देखा जाए कॉन्टैक्ट शुड बी मिनिमम, पर हम सैंपल्स को टच करते हैं. हमारे बुकिंग्स में देयर शुड बी मिनिमम गैदरिंग, लेकिन हमारी बहुत कॉन्फ्रेंसेस में सबसे ज़्यादा गैदरिंग होती है. टाइम कम से कम स्पेंड करना चाहिए, पर हम रिपीटेडली उस सैंपल्स को देख देख के बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. एंड देयर आर रिपीट विजिट्स. सो whatever is advised not to do is actually our cycle. तो बहुत मुश्किल होगा अपनी हैबिट्स को चेंज करना to reverse it completely. But I think हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है. जैसा कि अभी सुगाता ने कहा, काफ़ी एग्जांपल्स दिए गए जहाँ पे कि डिजिटल इंटरवेंशन हो रहा है. हम अपनी पूरी की पूरी कलेक्शंस को डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं. सो अगर हम सोक्टास का ही एग्जांपल लें तो हमने डीलर्स के जितने भी स्टॉक है उसको हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, which can be made into a PDF, and those are collection wise digital books, digital chapters you can say. So Jacquard का अलग है, checks का अलग है, motifs का अलग है. So digital chapters हैं उस पूरी book में, which are being made for that dealer stock, which can be showcased to retailers. So वो जर्नी हमने स्टार्ट की है from brand till retailers. वो जर्नी हम कवर कर रहे हैं through this. Now, because your specific question is to this level, I think that can be extended completely to Linen Club dealers. और हमारे retailers इससे क्यों लेके जो भी वो selections कर रहे हैं dealers के stock से, I think they can ask for those images. They can create their own digital books from that and can share with their consumers. So ये साइकिल में मेरे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड जो हम फिजिकली बहुत महंगी और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते थे, फॉर सम टाइम्स आई थिंक वी हैव टू स्टॉप. उसमें मिनिमम हमको फिजिकल प्रेजेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, एंड कितना हम उसमें डिजिटल का यूज कर सकते हैं, आई थिंक दैट विल बी द वे फॉरवर्ड. थैंक यू सर. Vish, my next question is for you. The question comes to us from Sholapur. The question says that after demonetization, there was a dip in sales of linen. We know that linen is a premium category. What is your outlook for us, and do you expect dip in sales this time as well? Thank you, Shruti. If you look at it one way, dip तो पहले ही हो ही गया है सारे कैटेगरी में, not just linen.
there is a sizable dip that has happened immediately. दो चीज अलग है, एक तो जब वो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन के इमीडिएटली उसके बाद जीएसटी भी हुआ था, तो देयर वाज अ मल्टीपल वेव्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कंटिन्यूड इन द इकोनॉमी 2-3 टाइम्स, तो वो एक कॉम्बाइंड इफेक्ट था. सेकंड, वो डिमोनेटाइजेशन जो था वो सब लोगों को इम्पैक्ट किया था. कैश वेंट आउट ऑफ एवरीबॉडीज हैंड, सो एवरी पर्सन स्ट्रगल्ड विद कैश. वो पुअर कंज्यूमर हो, रिच कंज्यूमर हो, सबको लिक्विडिटी वाज अ प्रॉब्लम. नाउ ये बार जो प्रॉब्लम है इसमें ये अलग है कि नॉट ऑल कंज्यूमर्स आर इम्पैक्टेड इन द सेम वे. जैसे हमने चाइना का एग्जांपल बात किया, richer consumers to a certain extent or actually to most extent not impacted. अभी हम लिनन क्लब के कस्टमर प्रोफाइल देखेंगे, हमारे 30% कस्टमर्स प्रोफेशनल्स हैं जो कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करते हैं. जो 30% कस्टमर्स रफली बिजनेसमैन हैं, दैट टू रिलेटिवली रिचर बिजनेसमैन whose cash flow and income is not impacted. तो ये जो कंज्यूमर सेगमेंट है, इनका डिमांड ऐसे चेंज नहीं होता है क्योंकि दे कैन अफोर्ड टू बाई. पर जरूर दो चीज हो सकता है. एक, सम कंज्यूमर्स माइट स्टार्ट डाउन ट्रेडिंग. जो पहले लिनन लेते थे, कुछ लोग अभी लिनन ब्लेंड लेना शुरू करेंगे, पर्टिकुलरली जो बिजनेस चलाते हैं और उनका बिजनेस 2-3 मंथ बंद हो गया है, तो उनमें थोड़ा इकोनॉमी प्रोडक्ट्स लेना शुरू करेंगे. तो आप सब रिटेल में अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत ब्लेंड और प्रीमियम कॉटन वगैरह प्रोडक्ट्स रख लेंगे, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा. और अगर कंज्यूमर को कोई थोड़ा स्लाइटली लोअर पॉइंट प्राइस प्रोडक्ट चाहिए तो भी रहेगा. तो हम हेडक्वार्टर्स में वैसे भी एक प्रोजेक्ट चल ही रहा है कि हम लोग ये सब प्रोडक्ट्स दे पाए, तो वो एक अच्छा रेजोल्यूशन हो सकता है. द सेकेंड पॉइंट इज दैट कि ये जो पेंट अप डिमांड वाला फैक्टर है, अगर आप मान लेंगे कि जो सेल्स डिक्लाइन होना है वो हो ही गया है, मतलब ये बात नहीं है कि होगा कि नहीं, वो तो हो चुका है. इसलिए अभी बात इतना है कि कब बाहर आएंगे. जैसे पहले भी बताया था, अभी 1 महीने में बाहर आ सकते हैं, 3 महीने में बाहर आ सकते हैं, पर हमारा तो अभी यही अंदाज है कि फेस्टिवल सीजन तक मोस्टली हम ये क्राइसिस से बाहर आ जाएंगे. ये जो पूजा हॉलीडेज, दिवाली और क्रिसमस और मकर संक्रांति, ये जो 4 मेजर शॉपिंग इवेंट्स हैं इंडिया में, वो टाइम तक डिमांड वापस आ जाना चाहिए हमारे कैटेगरी के लिए. तो मेरे ख्याल से हमारा जो प्लानिंग यहाँ पे अपने रिटेल टीम के साथ हो रहा है, वो भी इसी सीजन के लिए हो रहा है, और मेरे ख्याल से आपको भी वही सीजन मान के चलना बेहतर रहेगा. थैंक यू. Thanks, Vish. I think the upcoming festival season will really be important for the industry, as you are rightly saying. My next question, Sid, I will circle back to you. The question is again anonymous, but he says that you spoke about rural demand, and you said that in our quest to diversify, we should look at rural. So he's saying that the main issue there becomes outstanding amounts. In fact, that is one theme in many questions that I hear around managing working capital, around managing credits, managing stock. So how can the channel manage their working capital more effectively? Sure. देखिए, I don't think that in our experience credit or working capital is a higher risk in premium rural segment. We are talking about the cream of rural. हमारा प्रोडक्ट आम रूरल कंज्यूमर नहीं लेगा, बट अगर आप रूरल कंज्यूमर का हाईएस्ट एंड देखें तो 5-7% हाउस होल्ड वहाँ पे रिच हैं. तो उनकी बात करें तो आई डोंट थिंक उनके केस में क्रेडिट शुड बी एन इशू. आई थिंक द बिगर इशू इज द चैनल. आप उनको सर्विस कैसे करें, उन तक उनको प्रोडक्ट कैसे दिखाएं. तो उसमें कुछ नए इनोवेटिव मॉडल्स आ रहे हैं. देयर आर कंपनीज हु आर क्रिएटिंग अ वेरी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड एक्सेस टू रूरल मार्केट्स. हम लोग भी उसको क्लोजली स्टडी कर रहे हैं कि कुछ पायलट उस एंड पे हम कर सकें. तो आपको थोड़ा अलग तरह से सर्विस करना होगा वहाँ पे. आई डोंट थिंक रेगुलर चैनल से आप वहाँ पे बस आप होलसेलर आप वहाँ पे एक रिटेलर को बेच दे और सोचे कि वो बिक जाएगा.
उस तरह से ये बिजनेस नहीं हो सकेगा. आई थिंक आपको अलग तरह का मॉडल अपनाना होगा, एंड देयर आर कंपनीज हु आर डूइंग इट फॉर अदर सेक्टर्स. सो अपैरल में इतने नहीं हुआ है अभी तक सक्सेस, बट आई थिंक इट्स वर्थ ट्राइंग राइट नाउ. That's my view, but honestly it's early stage, so हमें भी jointly कुछ pilots करने होंगे, experiments करने होंगे, and we are happy to support also. I'm sure Linen Club is also happy to support that. Thanks, Siddharth. In fact, when I'm looking at the questions, along with questions, we're also getting some suggestions, like from Mr. Abhijit Vyas, who's saying retailers can evaluate app-based virtual trial rooms. We can look at, like Jaswinder sir spoke about, hygiene awareness, training to operating staff, consumer convenience, confidence. So some really valid suggestions coming in from the channel partners as well. And some asks as well in terms of product, for example, from Mr. Manish Desai, who says that suiting range for complementing our shirting range is something that we can explore. So thank you for all of those suggestions as well. I think we are coming towards the end of our session today. We've heard lots of inputs, but Satyaki sir, can I request you to please close the session? Hello again, and I don't know how to close a digital session. You know, everything is new for all of us. When we do a proper conference and we have all of you in front of us, you know, we dance towards the end of the conference. We have a few drinks, but now that digitally it's not possible. Digitally it's possible. All of you take a drink, I take a drink, and we say cheers, and we will overcome this also, and this too shall pass. But मेरे तरफ से and मेरे टीम के तरफ से, Linen Club, Soktas, Giza House, अपना wool business सबके तरफ से, thank you very much for joining us. Thank you very much for your questions. Thank you for being our partners. Thank you for being our customers. And we really value your relationship, and we are here to service you, handhold you, be transparent with you, and we expect the same thing from your side. The battle is with COVID, and the battle is versus the consumer. If the supply chain remains consistent, which is me, my dealer, my retailer, all of us, then we can overcome this together. So thank you very much for joining, and I can't say see you in the market, but really see you in the market. All the best. Thank you very much. Thank you. Thank you so much to the entire panel for your valuable inputs. I hope everyone who joined us today had a good session. Thank you so much and have a good day. Stay safe. Namaste.